तो again once say good morning student. Yes, today we will discuss about the displacement reaction. So first of all, the definition of this reaction. Displacement, what is displacement reaction? So its definition is reaction in which more reactive element displaces the less reactive element from its short solution. So यहाँ आपने देखा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव एलिमेंट. ठीक है, more reactive element displacing the less reactive elements from its salt solution. Suppose there is a metal A. This is A metal, and there is another metal BaSO4. Okay, so one metal is A, another metal is B. But what is the condition here? This A should be more reactive. A is more reactive than B, then only this reaction will happen. So A is more reactive than B. Then after this reaction, okay, what will happen? This A displaces the B. Then what will form here? ASO4 plus B get displaced. Is it clear? So here this happens in the displacement reaction. So first of all, first problem is with us that how can we know which element or which element is more reactive than other one? Which one? Okay. So to know the which reactive is more element than other one, I have made a little one formula. I have made very easy formula. I have made. So this is the definition. Now come to know which element is more reactive than which one. So the simple formula I have made. The formula is PSC माँ. क्या है? PSC माँ. माँ मतलब मम्मी. माँ. जीन ZIN जीन. टल TL टल. उसके बाद आगे है हाइड्रोजन साहब. हाइड्रोजन साहब क्या है? चीफ है, चीफ मिनिस्टर है. तो चीफ मिनिस्टर कैसा है बाबू? हम लोग का मोदी सरकार जैसा चीफ मिनिस्टर जो है वो स्मार्ट है, गुड है एंड पॉलिटिशियन है. ठीक है, तो ये हमने एक क्लू दिया जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के बारे में, मेटल के बारे में कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और किससे. तो अब इसमें देखो तो ये P है क्या? P stands for potassium. P stands for potassium. S stands for sodium. C stand for calcium. M stand for magnesium. A for aluminium. Z for zinc. I for iron. Fe. N for nickel. Ni. T for SN. tin. L for lead. Pb. H for hydrogen. C for copper. And M for mercury. Hg. S for silver. Ag. G for gold. Au. GAU gold and P stand for PT. ठीक है. Now I am writing valency also so that it will be easy for you to write the equation. K valency of K is 1, sodium 1, calcium 2, magnesium 2, aluminium 3, zinc 2, iron 2 and 3, nickel 2 and 4, tin 2 and 4, lead Pb 2 and 4 also, hydrogen 1, copper 1 and 2, variable valency, mercury 1 and 2, silver 1 और 2 इसका भी होता है 1 2, गोल्ड के 2 एंड प्लैटिनम का
2. So these are the variants. Yes, क्या बोलना चाह रहे उज्जवल? बोर्ड साइन कर रहा है, बल्ब जल रहा है. ठीक है, ठीक. तो इस तरह से आपने देखा कौन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन किससे कम रिएक्टिव होगा. So you as you are going down, suppose you take the example of potassium and sodium, तो जो ऊपर है that is more reactive. It means potassium is more reactive than sodium. If you are taking sodium and magnesium, then sodium will be more reactive than magnesium. The elements which is higher in position will be more reactive than the elements which is present in the lower position. Is it clear? Yes. So this have you written this one in your note copy? Because I will rub this one. I need board. I need board. Now, according to this rules, displacement reaction, now you write the complete the equation. CuSO4 aqueous I have taken, and in this CuSO4 I am putting aluminum. Then again CuSO4 I have taken aqueous, and here I am putting zinc. Here CuSO4 I have taken aqueous, and then here I am putting iron Fe. Can you complete this equation? Can you complete this equation, Sanupya? First one, क्या होगा? What will be the product? Why LSO4? What is the valency of Al? Al 3 लिखे हैं, and SO4? SO4 valency क्या है? 2 है. So this will go here and this will go here. So formula will be Al2SO4 का whole 3. हाँ, अब बताइए, balanced chemical equation you write. कोई आइडिया नहीं? How much time you will take? See, यहाँ क्या बन जाएगा? Al2SO4 का whole 3 plus copper will get displaced because copper is less reactive. Here is copper and where is aluminum? Here. So aluminum is more reactive than copper, so aluminum displaces the copper. Now you balance it. Balance it means Al2SO4 whole 3. So here you put 2, 3, here you put 2, and here now it is balanced, and here you put 3. Second one, CuSO4 plus Zn. Cu is here and Zn is here. Again, Zn is more reactive. So it will form here ZnSO4. ZnSO4 plus Cu will get displaced. Now third equation, Cu is here and iron is here. Again, iron is more reactive. So it will form FeSO4 plus Cu. So this is the example I have given. Now come to the example given in the NCERT as well as one activity we have to study. In NCERT, one simple activity is saying to do. Kya? Take a clean and dry test tube. This is test tube. In this test tube, make a put a freshly prepared तुरंत का बना हुआ FeSO no CuSO4 aqueous. Yes, aqueous means solution made in water. And then they are telling that put 2 or 3 iron nails. 2 iron nails you dip there. Iron nail. It should be unrusted.
If it is rusted, you rub it with the sandpaper. Otherwise, reaction will not take place. So rub with the sandpaper, gray color of the iron when it visible, then dip it there and keep this for some time, half an hour. So what is the color of this CuSO4? CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस जो सॉल्यूशन है बेटा, ये है ब्लू इन कलर, ब्लू कलर। अच्छा देखिए, अभी चुप हो जाइए। आई हैव टेकन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। पानी में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्ट है, डाले कैसा पानी में, डिस्टिल वाटर में, एंड उसको मिक्स कर दीजिए, जैसे नमक घुलता है घुल जाएगा। एंड आफ्टर दैट टेक 2-3 आयरन नेल्स, उसको सैंड पेपर से रगड़ के साफ कर दीजिए, रस्ट नहीं होना चाहिए, एंड दोनों नेल को इसके अंदर में डुबा दिए। अभी क्या आपने पा रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस CuSO4? ब्लू कलर। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन नेल? यहाँ आयरन नेल जो है इसका रंग कैसा है? अभी तुम लोग कोई माइक और कोई वीडियो नहीं ऑन करेगा, अभी चुपचाप सुनो, जब बुलाएंगे तब आना। द कलर ऑफ CuSO4 जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन बना है उसका ब्लू कलर है, दिखा। एंड आयरन, लोहा का कांटे, लोहा का रंग कैसा होता है? लोहा का जो रंग है वो क्या होता है? ग्रे कलर होता है, बिना जंग वाला लोहा। जंग वाला नहीं बोलना मिस, रेड ब्राउन है, नो। अनरस्टेड आयरन इज ग्रे इन कलर। देन हियर आप देख रहे हैं आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर अकॉर्डिंग टू सीरीज। हमने रब करके, आप अपने बुक में देखिए, आयरन जो है ऊपर है, कॉपर जो है नीचे है, इसलिए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट विल अगेन हियर रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड क्या बन जाएगा? FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा एंड प्लस Cu डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। एंड द कलर ऑफ दिस, यू विल सी द चेंज इन कलर ऑफ दिस। यह कैसा था? ब्लू कलर था। एंड आफ्टर सम टाइम्स आप देखिएगा कि इसका कलर कैसा हो गया? पेल ग्रीन हो गया, ग्रीन कलर में आ गया। ब्लू से इसका रंग कैसा हो गया? ग्रीन कलर हो गया। एंड कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। तांबा का तार देखिए, तार छील के देखिए, रेडिश ब्राउन होगा। और ये जो कॉपर जो होगा वो आपका कैसा यहाँ पर दिखा, जो आयरन जो नेल होगा वो कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि आयरन के नेल के ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया? आयरन के नेल पर डिपॉजिट हो गया कॉपर, इसलिए उसका रंग कैसा हो गया? रेडिश ब्राउन। आया समझ में? आपको ये क्वेश्चन है तो पूछो। अभी कोई क्वेश्चन पूछना है पूछिए। सब सो गया? कहाँ चला गया? उज्जवल, सहनूपिया, कुछ डाउट है इसमें कि और दूसरा एग्जाम्पल दें? ठीक है, अब एक तुम लोग को प्रैक्टिकल भी करना है, एक्टिविटी भी करना है। वो क्या है एक्टिविटी? देखो, एक्टिविटी है, अभी बंद हो जाओ, अभी बंद हो जाओ। आपको 4 स्मॉल बीकर लेना है, 1 2 3 4। इस बीकर में आप बनाइए CuSO4 का सॉल्यूशन। क्या बनाए? CuSO4 का सॉल्यूशन बनाए। यहां बनाइए FeSO4 का सॉल्यूशन, दिख रहा है। यहां बनाइए ZnSO4 का सॉल्यूशन, और यहां बनाइए Al2SO4 का सॉल्यूशन। यहां क्या है? कॉपर सल्फेट, एंड ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग कैसा है? ब्लू। FeSO4 सॉल्यूशन का रंग कैसा है? ग्रीन। ZnSO4 का रंग कैसा है? कलरलेस। और इसका भी रंग कैसा है? कलरलेस। अब ये 4 सॉल्यूशन बन गया। अभी आपको 4 कॉपर का टुकड़ा लेना है, 1 2 3 4। ये क्या चीज का टुकड़ा है? कॉपर का। 4 आयरन का कांटे ले लीजिए, 1 2 3 4। ये क्या है? आयरन नेल है, अनरस्टेड, एकदम छीला हुआ आयरन नेल है। उसके बाद यू टेक 4 ग्रैनुलेटेड पीस ऑफ जिंक। इस तरह से जिंक ले लीजिए, ये क्या है? जिंक। और उसके बाद अल्युमिनियम लोहा का 4, 1 2 3 4। आप क्या ले लीजिए? अल्युमिनियम का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है। ये अब क्या करना है बेटा? 16 टेस्ट ट्यूब पकड़ो, या पहले 4 4 का करो।
ये 4 टेस्ट ट्यूब, 1 2 3 4, इसमें से सारे को भर दो, इसको, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में हमने क्या भर दिया है, क्या भरे हैं, कॉपर सल्फेट, ये सब में भरा हुआ है CuSO4। और अब एक में क्या डाल दीजिए, कौन है जी, CuSO4 है सभी में, सारे टेस्ट ट्यूब में, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इसमें। उज्जवल, क्या हो रहा है तुम्हारे पास, कौन है, कौन है, मम्मी है, क्या बोल रहे हैं मम्मी, देखिए अभी इधर आइए, तो 4 टेस्ट ट्यूब, 1 2 3 4, हम सब में क्या भर दिए बेटा, क्या भर दिया है, CuSO4। अब इसमें क्या डालिए, कॉपर का एक टुकड़ा डालिए, इसमें क्या डालिए, आयरन का एक टुकड़ा डालिए, इसमें क्या डालेंगे, जिंक का टुकड़ा डालेंगे, और इसमें क्या डालेंगे, एल्युमिनियम का टुकड़ा डालेंगे। तो अब देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। पहला इसमें क्या है, CuSO4 एक्वस में हमने क्या डाला, Cu, क्या होगा, कैन यू टेल मी सहनुप्या, व्हाट विल हैपन हियर, CuSO4 एक्वस प्लस Cu क्या होगा बेटा, नो रिएक्शन, क्यों, आयंस आर सेम है, दोनों जो आयंस है वो सब क्या है, ना कोई लेस है ना कोई मोर है, वो आयंस का जो इक्विवेलेंसी है वो क्या है, इक्वल है। तो यहां लिखेंगे नो रिएक्शन, लिख बेटा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्यों नो रिएक्शन, बिकॉज आयंस आर, बिकॉज आयंस आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ना कोई लेस है ना मोर है, दोनों बराबर बराबर है। Here more reactive should be there and one less reactive should be there, but here ions are equivalent, so no reaction. Is it clear? Come to the second test tube, CuSO4, again एक और solution हमने भरा है। अब इसमें हमने क्या डाला है, आयरन, Fe, क्या होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 एक्वस प्लस Cu, यहाँ ये जो कलर था ब्लू, कलर चेंज हो जाएगा ब्लू टू ग्रीन, एंड इसका रंग कैसा था, ग्रे टू रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो दूसरा टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुआ बिकॉज आयरन वाज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नाउ कम टू सी द थर्ड वन, थर्ड वन क्या है, जिंक, यस, CuSO4 एक्वस प्लस जिंक, Zn, ये क्या होगा, यहाँ जिंक अगेन मोर रिएक्टिव आ गया देन ZnSO4, ZnSO4 प्लस Cu, अभी Cu यहाँ कलर कैसा था, ब्लू कलर। नाउ अगर आफ्टर सम टाइम्स यू विल सी इट बिकम कलरलेस, कलर डिसअपियर्ड हो गया, नो कलर, व्हाइट हो गया, कलरलेस। एंड जिंक कैसा हो गया, जिंक यहाँ पर ये जो है, बोलोगे कॉपर है तो रेडिश ब्राउन आना चाहिए, बट नो, जिंक हैज डेवलप ब्लैक कोटिंग, याद रखना। व्हेन zinc is dipped in the copper sulfate solution, on the zinc black coating developed. So this is the third, in the third test tube also reaction has taken place. In the same way, now you take the fourth one. फोर्थ वन क्या है, CuSO4 एक्वस प्लस एल्युमिनियम, क्या डाले इसमें, एल्युमिनियम, अगेन यहाँ क्या बनेगा, Al2SO4 होल 3 प्लस Cu। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे बेटा, 2 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे,
यहाँ 3 लगाएंगे और यहाँ भी सॉल्यूशन कलरलेस हो गया और एल्युमिनियम जो है उसके ऊपर कैसा आ गया, रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। ओनली विथ द जिंक क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। बट एल्युमिनियम के केस, हाँ, ब्लैक कोटिंग ओनली टेक्स प्लेस इन द जिंक, बट अलोंग विथ एल्युमिनियम के साथ नहीं होगा, एल्युमिनियम के साथ रेडिश ब्राउन कलर ही आएगा कॉपर डिपॉजिट होने के कारण। ठीक है, तो इस तरह से देखा इसमें 3, इसको कॉपर केवल डिस्प्लेस नहीं किया, आयरन, जिंक एंड एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट में से कॉपर को। अब उसी तरह से ये 4 जो टेस्ट ट्यूब है, इस 4 टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या भरेंगे, अब क्या भर रहे हैं, FeSO4, इस सब में क्या भरा हुआ है, FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और सब में डाला गया, एक में कॉपर, एक में आयरन, एक में जिंक और एक में एल्युमिनियम। देन क्या होगा, पहला रिएक्शन FeSO4 प्लस Cu होगा क्या, फर्स्ट बोतल में FeSO4 प्लस Cu रिएक्शन होगा क्या, ये एक्वस है, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, बिकॉज copper is less reactive than iron. Copper is less reactive than iron. So here in the first test tube, reaction of iron sulfate with copper will not take place. Now come to the second test tube in which क्या है, iron sulfate डाला हुआ है, iron ही डाला हुआ है। So second iron sulfate plus iron, अगेन यहाँ एक्वस है, देन नो रिएक्शन बिकॉज यहाँ आयन अगेन जो है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट है, आयंस आर इक्विवेलेंट, यहाँ भी Fe, यहाँ भी Fe, so here also again no reaction will take place. Now come to the beaker number 3. In the beaker number 3 what is there, in the beaker number 3 zinc is there, then यहाँ रिएक्शन हो जाएगा because zinc is more reactive than iron। तो क्या बनेगा रिएक्शन बेटा, ZnSO4 प्लस यहाँ एक्वस के रूप में आ जाएगा, प्लस Fe डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो द कलर ऑफ आयरन सल्फेट, इसका कलर कैसा था, ग्रीन कलर था, एंड आफ्टर द रिएक्शन इट विल बिकम कलरलेस। So FeSO4 reacting with zinc because zinc is more reactive than iron and forming the zinc sulfate plus iron which getting displaced here. Is it clear? Now come to this test tube number 4 where you have emerged aluminum. Then aluminum again reacting with the copper sulfate because iron sulfate, because aluminum is more reactive than iron, and here again reaction will take place and this compound will be Al2SO4 whole 3 plus क्या बन जाएगा, Fe डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ये एक्वस हो गया, यहाँ भी इसका रंग कलरलेस, ग्रीन टू कलरलेस हो गया। इस तरह से यहाँ भी रिएक्शन। तो हियर यू हैव सीन दैट कॉपर को 3 चीज डिस्प्लेस कर दिया, आयरन, जिंक एंड एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर दिया, बट आयरन को ओनली कौन डिस्प्लेस किया, जिंक एंड एल्युमिनियम डिस्प्लेस किया। ठीक है, अभी आ जाएंगे थर्ड, इसका सॉल्यूशन, सभी टेस्ट ट्यूब को सॉल्यूशन को फेंक देंगे और अभी इसमें क्या हम लोग भर देंगे, थर्ड बॉटल का, इस बॉटल का कंटेंट इसमें भरेंगे। इस सब में क्या है बेटा, ZnSO4 हमने डाला है। अब नाउ यू सी ZnSO4 क्या क्या इसके साथ रिएक्शन करेगा, ZnSO4 aqueous, the color of this ZnSO4 is colorless. When you are putting their copper in the first test tube, no reaction, no reaction. Do you know why? Because copper is very less reactive than zinc, so no reaction. In the case of second here, copper plus iron, copper plus iron again here, if you are taking iron, iron means Fe, then again no reaction because iron is again less reactive than the zinc. Third, you put there in the third test tube, you have emerged zinc. Again, zinc is not able to displace the zinc because ions are equivalent. So only and only this fourth test tube where aluminum is emerged will in reaction takes place. So here क्या बनेगा, Al2SO4 का whole 3 aqueous plus Zn डिस्प्लेस कर देगा, देन यू 3 पुट, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 3 लगाइए, यहाँ समझे। तो यहाँ आपने देखा कि ZnSO4 को कौन कौन डिस्प्लेस किया, ओनली एल्युमिनियम डिस्प्लेस किया। और अगर आप एल्युमिनियम सल्फेट में डालते हैं तो कोई
रिएक्शन नहीं करता है. It means the more reactive is aluminum is more reactive, then zinc is the second one, and then iron is, and then copper. So we have arranged these elements on the basis of their reactivity. Aluminum is the number one reactive metal. सेकेंड में जिंक आएगा, थर्ड में आयरन आएगा, एंड कॉपर में क्या होगा? कॉपर इज द लास्ट वन हियर आई हैव टेकन. इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सभी को समझ में आया क्या बच्चों? वेरी गुड. अभी आ जाओ एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये क्या है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो एक देखो, एक कंपाउंड है जिसमें ए एंड बी जुड़ा हुआ है. ए के ऊपर प्लस चार्ज है और बी के ऊपर माइनस चार्ज है. और एक दूसरा कंपाउंड है जिसमें सी और डी है, सी के ऊपर प्लस और डी के ऊपर माइनस. एंड ये रिएक्शन के बाद क्या बना लेता है? ए जो प्लस है ये अपना माइनस को छोड़ के ए माइनस ले लेता है. तो क्या आ गया? ए डी. ठीक है, ये क्या बनाया? ए डी, इसका प्लस और इसका माइनस आ गया. और क्या एक और क्या चीज बना? सी बी. सी के ऊपर प्लस और डी के ऊपर, सी बी के ऊपर माइनस. ये देखिए ए के साथ ए प्लस आए, कटायन था, ये एनायन था, यहाँ ए कटायन था, ये एनायन था. इस रिएक्शन के बाद इसका प्लस जो है अपना माइनस को छोड़ के इसका माइनस, दूसरे कंपाउंड का माइनस ले लिया. और इसका जो प्लस है अपने माइनस को छोड़ करके इसका माइनस को ले लिया. तो इस तरह का जिस रिएक्शन में होता है, यहाँ क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है. ये अपना माइनस दूसरे को दे रहा है, दूसरा का माइनस ये ले रहा है. ये माइनस अपने प्लस को दूसरे को दे रहा है, दूसरा का प्लस ले रहा है. यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. सो व्हाट इज इट? हाउ विल यू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? So reaction in which exchange of ions takes place. Reaction in which exchange of ions takes place. Exchange of ions take place is called double displacement reaction. ठीक है? रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस, अपना पॉजिटिव आयन दूसरे को दे देना, दूसरे का माइनस ले लेना, और उसका माइनस अपने को ले लेना, अपना प्लस दूसरे को देना. ऐसा ही जिस रिएक्शन में होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है इसका दो टाइप्स है. नंबर वन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और सेकेंड जो है वो क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो तुम लोग को एनसीईआरटी में जो अभी पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं पढ़ना है. अभी इसको नहीं दिया है, केवल इसको दे दिया, प्रेसिपिटेशन को दे दिया है, जबकि वो भी टाइप से डबल डिस्प्लेसमेंट का. तो हम लोग दोनों ही पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस पर ज्यादा जोर से पढ़ लेंगे. आ जाओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? रिएक्शन बिटवीन एसिड टू एसिड एंड बेस. एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इन विच रिएक्शन इन विच
एसिड reacts with base to form salt and water. उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले ले बेटा, HCl ले ले एसिड के लिए, और बेस के लिए NaOH ले लो। तो HCl में देखो H के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, NaOH में Na के ऊपर प्लस चार्ज और पूरे होल OH के ऊपर माइनस चार्ज। रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बताए हैं कि इसका प्लस उसका माइनस के साथ आएगा, तो H और OH मिलके क्या बन जाएगा? H2O, और N एंड Cl मिलके क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। सो ये हो गया, इसमें एक सॉल्ट एंड वाटर बना। दिस इज व्हाट सॉल्ट, दिस इज व्हाट वाटर। ये क्या है? बेस, ये क्या है? एसिड। तो यह एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, विच इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको कि आपको एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया पढ़ने के लिए, बाद में दिया है। अभी हम लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दिया है क्या? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का दिया हुआ है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में दो जो सॉल्ट होगा, दो सॉल्ट इन द एक्वस कंडीशन ओनली, देन सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा? कुछ सॉल्ट एसिडिक होगा, कुछ बेसिक होगा। तो दो प्रकार का सॉल्ट है, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट, दोनों रिएक्शन करेंगे और वो क्या बनाएगा? एक सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन बन जाएगा। तो लिखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डेफिनेशन, रिएक्शन, यहां से रिएक्शन in which reaction in which two ionic compound react in aqueous condition and form two compound दो कंपाउंड बनेगा, in which वन कंपाउंड जो क्या होगा? वन कंपाउंड इज इनसोल्युबल बन जाएगा, इनसोल्युबल, and get separated from the solution। उसको क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको दिया हुआ है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये दोनों ही एक्वस है। रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? Ba के साथ आ जाएगा SO4, BaSO4, और ये ही जो है ये व्हाइट पीपीटी बना लेगा, व्हाइट पीपीटी, और Na और Cl मिलके क्या बन जाएगा? +2NaCl जो है बेटा, ये क्या हो गया? एक्वस हो गया। ये NaCl जो है क्या है? एक्वस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका B के ऊपर प्लस चार्ज, ये SO4 इसका माइनस को ले लिया, और इसका प्लस इसका माइनस को ले लिया। तो और इस तरह से एक जो सबस्टेंस BaSO4 जो है वो इनसोल्युबल है, एंड जैसे ये बनता है सॉल्यूशन से ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ BaSO4 जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बना, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? देखो BaCl2 एक सॉल्ट है जो पानी में घुल जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो बेटा, नमक को पानी में घोल लिए और दूसरा गिलास में चीनी को घोल लिए और दोनों को मिक्स करते हैं, तो एक वो बन जाता है फिटकिरी या एक वो बन जाता है बालू। तो फिटकिरी तो पानी में घुलल रह जाएगा, लेकिन बालू तुरंत क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ
पर भी है, ए पानी में घुलनशील है, सॉल्युबल है, दिस इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, बट व्हेन इट रिएक्टिंग इट फॉर्म ए इनसॉल्युबल कंपाउंड BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड तो पानी में घुला है ही, तो ये इनसॉल्युबल बन गया, और इनसॉल्युबल बनने के बाद वो क्या हो जाएगा, तुरंत सॉल्यूशन से सेपरेट हो गया, और इस तरह का जो रिएक्शन जिसमें होता है इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आ गया समझ में? के जा बेटा, which, in which, फिर से पढ़ देते हैं, रिएक्शन इन विच two ionic compound react in aqueous condition and form two compound in which one compound is insoluble and gets separated from the solution is called double displacement reaction। अभी चमक रहा है तो क्या करें बेटा, कुछ करेंगे तो बॉल बुता देंगे तो फिर दिखबे नहीं करेगा। आ गया समझ में? अच्छा, one more example is given in your NCERT, two example, एक नंबर 1 यहाँ है और दूसरा एग्जाम्पल एक और है, उसको देख लो। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्या है, टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल टू एक्वस, इसका कलरलेस है, प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस, and when you are mixing these two things you are getting PbI2, ये क्या बना, येलो PPT, येलो, यही पर ये इनसोल्युबल बन गया, येलो PPT प्लस 2KNO3, ये जो क्या बन गया, एक्वस एक सॉल्ट बना। तो यहाँ पर भी देखिए, इसका Pb किसके पास आ गया, इसका निगेटिव के पास आ गया, ले गया, PbI2 हो गया, इसका पॉजिटिव जो है ये किसके ले लिया, इसको ले लिया। तो इस तरह से इस रिएक्शन में भी एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, और एक जो सब्सटेंस PbI2 जो है वो सॉलिड इनसॉल्युबल बन गया है, ये प्रेसिपिटेट के रूप में, और इसका स्पेसिफिक रंग बड़ी पूछता है, व्हाट इज द कलर ऑफ लीड आयोडाइड, येलो। तो ये भी रिएक्शन आपको क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एनसीईआरटी में मात्र 2 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में आप देखिए, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिफरेंस लिखिए डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में। क्या है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में अंतर? तो एक तो डेफिनेशन लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता है सॉल्ट सॉल्यूशन से। लेकिन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें एक कंपाउंड और एक एलिमेंट होता है, इसमें दोनों ही क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड होगा। तीसरा अंतर आप दे सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बनता है, प्रेसिपिटेट वहां भी बन सकता है, लेकिन वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, वहां मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव ये खाली हो रहा है। उसके बाद जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेडॉक्स है, बट डबल डिस्प्लेसमेंट जो है ये रेडॉक्स नहीं है। तो ये रेडॉक्स वाला हम लोग कल पढ़ेंगे तो आपको हम बता देंगे, ऐसे अभी हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, शायद आप समझ जाए। देखिएगा ये ध्यान से, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जब इसमें डिस्प्लेसमेंट को पहले देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है रेडॉक्स है। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स, रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, जिसमें दोनों साथ साथ चलता है उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स। और देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आप ले लीजिए, CuSO4 एक्वस प्लस Fe क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। यहां देखो Cu के ऊपर 2 प्लस चार्ज है और पूरे SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज है। Fe न्यूट्रल है, इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है। यहाँ Fe के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ गया, Cu के ऊपर 2 माइनस चार्ज आ गया और Cu जो हो गया ये न्यूट्रल हो गया।
इसका मतलब Cu क्या किया है बेटा, Cu पॉजिटिव था तो ये दो इलेक्ट्रॉन को लिया, लेने के बाद में Cu न्यूट्रल हो गया, और Fe जो न्यूट्रल था वो क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, Fe के ऊपर दो प्लस चार्ज और दो फेंका हुआ इलेक्ट्रॉन इसका इधर दर्शा दीजिए। अब ये क्या होगा, ई और ई कट जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि Cu जो है कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कॉपर जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन का लेना क्या होता है, रिडक्शन, एंड आयरन जो है इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का फेंकना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दूसरा फेंक रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फेंका, केवल एक्सचेंज हुआ, इसलिए वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आया समझ में? सनुप्या, उज्जवल, कल 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 रेडॉक्स जब बताएंगे ना, रेडॉक्स बताएंगे तो और अच्छे से समझ जाइए। तो अच्छा, कल उसको रेडॉक्स फेंक इलेक्ट्रॉन का फेंकेगा, तो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो उसके ऊपर, जैसे आयरन को देखिए ना, आयरन न्यूट्रल है, जे को इसमें प्रोटॉन है जितना ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन फेंका, फेंकने के कारण इसके ऊपर दो प्लस चार्ज आ गया। अब आए कॉपर जो था इस तरह से फेंके हुए था, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो लो इलेक्ट्रॉन का लेना कहलाता है रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का फेंकना होता है ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो आयरन इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। रिएक्शन में देखिए कॉपर उधर न्यूट्रल हो गया, आयरन यहाँ न्यूट्रल था और आयन में बदल गया, इलेक्ट्रॉन फेंका। आया समझ में? इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का फेंकना ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? हुआ? ठीक है। और कोई क्वेश्चन अब तुम लोग पूछ सकते हो। अभी हम लोग क्लास ऑफ करेंगे, कल रिडॉक्स करेंगे, कल तो शायद क्लास मेरा नहीं, मंडे, कल फिजिक्स हो जाएगा। बोलिए, एनी डाउट डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में? नो? अरे प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, एगो सॉलिड बन जाता है जो इनसोल्युबल होता है, बस। एगो घुलनशील है, पानी में घुलेगा, दूसरा जो बनता है वो पानी में घुलता ही नहीं है। जैसे बताया ना कि बालू और नमक बन जाएगा, बालू घुलेगा क्या कभी पानी में? फिर उसी तरह से यहाँ भी है, ये वो जो है इनसोल्युबल, पानी में घुलता ही नहीं है, वो सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से। ओके, हमको मार्क किया चलो क्या, टीचर को मार्क करने के लिए आया? नहीं आता है? अभी स्नेहा आई है, ए बुढ़ी, कहाँ थी, कहाँ थी उस समय से? अच्छा, ठीक है, हम जा रहे हैं, जाओ वीडियो भेज देंगे, आएगा तो। ओके, बाय, गुड बाय। ठीक।